اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں آصف رضا، ایم فل بایو کیمسٹری، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے دو گزارشات کرنی ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹاپک میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو روزانہ کی جو ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ کے یوٹیوب پر آپ کو مل سکے۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی اور بریف کرنا ہے، میں نے آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بریفنگ یہ ہے کہ میں نے جو لیکچر 6 کلاس سے 8 کلاس، 9 اور 10 اور فرسٹ اور سیکنڈ ایئر، اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ میں نے ہر ٹاپک جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، تو ایک تو کلاس وائز ہوگا، یعنی 6ٹھی کلاس کا پہلے چیپٹر سٹارٹ لے کر 12ویں چیپٹر تک میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طرح کا 7ویں کلاس، 8ویں کلاس، 9، 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں نے اپلوڈ کرنے ہیں۔ اچھا، تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ آپ کو شرط یہ ہے کہ آپ نے میرا جو لیکچر ہے وہ شروع سے لے کر اینڈ تک اس کو سننا ہے، دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے لازمی اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور بیل آئیکن بٹن لازمی دبانا ہے۔ تو اس میں ہر ٹاپک میں سے آپ کو شارٹ کویسچن بنا کر دوں گا، جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے شارٹ کویسچن کلیئر ہوں گے اس میں، اور ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بھی کلیئر ہوں گے، اور لانگ کویسچن بھی کلیئر ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ ایک جو ٹاپک میں نے لیا ہے اس میں سے شارٹ کویسچن تو میں نے آپ کو بنا کر دینے ہیں نا، یہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے، جو آج کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں۔ تو ایک تو میں نے شارٹ کویسچن بنا، اب شارٹ کویسچن میں نے ہر لائن سے بنانا ہے، یعنی ایک ٹاپک لینا ہے، اس میں سے شارٹ کویسچن اس طرح بنانے ہیں کہ اس میں چاروں چیزیں کلیئر، تینوں چیزیں کلیئر ہوں، جس میں شارٹ کویسچن کلیئر ہوں، اس کے بعد ایم سی کیوز کلیئر ہوں، اور لانگ کویسچن بھی کلیئر ہوں۔ تو چلیے آج چلتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے سیل اور اس کی چند اقسام۔ یہ کلاس سیشن کا جو پہلا چیپٹر ہے وہاں سے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، سیل اور اس کی چند اقسام۔ یعنی یہاں پر میں چند اقسام، یعنی 4 اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، باقی نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو ڈسکس اس کے بارے میں کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس ٹاپک کا نام ہے سیل اور اس کی اقسام۔ تو سب سے پہلے آپ کو تسلی ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، سیل کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ سیل کسے کہتے ہیں، سیل کیا ہوتا ہے، سیل کے بغیر سیل کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کو شروع میں پتہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے کرتے ہیں سیل کی تعریف کیا ہے۔ زندگی کی بنیادی اکائی کو سیل کہتے ہیں۔ زندگی کی بنیادی اکائی کو سیل کہتے ہیں، یعنی فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنزم، فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنزم۔ تو ہمارا جسم جو ہے، اب ہمارا جسم ہو، پودے ہوں یا جانور ہوں، یہ اربوں سیل سے مل کر بنے ہیں۔ یعنی ہمارا جو سٹرکچر ہے، ہمارا جو باڈی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ کس سے بنائی ہے؟ سیل سے مل کر سیل سے بنائی ہے۔ یعنی ہمارے جسم کی جو بنیادی اکائی ہے، بنیادی یونٹ ہے، وہ کیا ہے؟ سیل ہے۔ یعنی ہمارا جسم سیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اربوں سیلز ہمارے اندر رکھے ہیں، وہ اگر آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں تو آپ کی زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اب اربوں سیلز موجود ہیں، جن میں سے چند سیلز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو ایک جسم کے اندر 50 سے 60 ٹریلین سیلز موجود ہوتے ہیں۔ ایک جو جسم ہے، ایک باڈی ہے، اس میں کتنے سیلز موجود ہوتے ہیں؟ 50 سے 60 ٹریلین سیلز
मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्स की अक़साम और उसके काम पर। तो ये आप साथ देख रहे होंगे कि मैंने सेल की हेडिंग दी और साथ में उसकी तारीफ़ लिखी है। उसके बाद अक़साम, उसके काम, इसकी हेडिंग मैंने दी है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है। आप तरतीब के साथ याद करेंगे तो आपको लेक्चर आसानी से याद होगा, समझने में भी आसानी होगी। तो ये साथ साथ में मैंने हेडिंग दी हुई, जैसे मैंने हेडिंग दी आपने भी ऐसे ही हेडिंग देनी है, याद करनी है। तो अब आते हैं अक़साम की तरफ। आज हमने जस्ट 4 अक़साम को डिस्कस करना है। कितनी अक़साम को डिस्कस करना है? 4 अक़साम को, जिसमें नंबर 1 है नर्व सेल्स, और नंबर 2 पे आती है रेड ब्लड सेल्स, नंबर 3 पर वाइट ब्लड सेल्स, और नंबर 4 पे आती है प्लेटलेट्स सेल्स। ये 4 हमने अक़साम सेल की आज डिस्कस करनी है। ये क्या होती हैं, इनके काम क्या होते हैं। अगर ये हमारे अंदर सेल्स मौजूद ना हों या हमारे जिस्म से निकाल दिए जाएं तो उनका नुकसान क्या होता है। तो पहली जो अक़साम है वो है नर्व सेल्स। अब जो नर्व सेल्स है ये क्या करती हैं? ये करती हैं पैगाम रसानी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पैगाम रसानी का काम करते हैं। पैगाम रसानी क्या होती है? अब हमारे जिस्म से रोज़ाना डेली बहुत सारे हमारे जिस्म बहुत सारे काम सर अंजाम देता है। वो जो काम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो काम बतौर पैगाम के तौर पर दिमाग की तरफ जाता है। अब जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब जो नर्व सेल्स होते हैं ये हमारे पूरे जिस्म में अल्लाह ताला ने फैलाए हुए हैं, हर जगह पर मौजूद हैं। कोई एक जिस्म की जगह खाली नहीं है जहाँ पर नर्व सेल्स मौजूद ना हों। तो ये नर्व सेल्स होते हैं, जिस जगह पर कोई काम हो रहा है वहाँ से वो पैगाम लेते हैं और दिमाग तक ले जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ पैगाम किस तरह के होते हैं। पैगाम नंबर 1 मैं आपको देता हूँ। आप देखते हैं, अब ये देखने का पैगाम है। अब आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये आपको उस वक़्त तक पता नहीं चलेगी जब तक दिमाग आपको नहीं बताएगा कि आपने कौन सी चीज़ देखी है, कौन सी चीज़ देख रहे हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आपकी आँखों के पीछे नर्व सेल्स रखे हैं। वो नर्व से अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो नर्व सेल्स वो पैगाम, देखने का पैगाम किधर ले जाते हैं? दिमाग की तरफ ले जाते हैं। दिमाग फिर उस पैगाम को पढ़ता है। पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद वो उसको किधर भेजाता है? दोबारा उसी जगह पर भेजता है जहाँ से पैगाम आया। यानी ये आँखों से पैगाम आया है ना, कोई चीज़ आपने देखी है तो वहाँ पर हिदायत, उस हिस्से को हिदायत जारी करता है, नर्व सेल्स के ज़रिए हिदायत जारी करता है कि आपने कौन सी चीज़ देखी। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने कौन सी चीज़ देखी है। इस तरह के और बहुत से फंक्शन हैं, बहुत से काम हमारे जिस्म में हो रहे हैं, पैगाम रसानी हो रही होती है। जैसे कि सुनने की है। सुनने की, जब कोई आप चीज़ सुनते हैं, आवाज़ आती है आपके कानों में, तो कानों के अंदर अल्लाह ताला ने नर्व सेल्स रखे हुए हैं। वो उस पैगाम को, कोई आवाज़ आपके पास आ रही है, कानों में टकराती है, वो उस आवाज़ को आवाज़ का पैगाम लेते हैं और किधर ले जाते हैं? दिमाग की तरफ। दिमाग उसको प्रोसेस करता है, रीड करने के बाद हिदायत जारी करता है। हिदायत उसी जगह पर आती हैं कि आपने फ़लाँ चीज़ की आवाज़ सुनी है। तो ये मैंने थोड़ा सा व्यू दिया है, और भी आगे नेक्स्ट हम तफ़सीलन जब हम 8 क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर हम नर्व सेल्स के बारे में तफ़सीलन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नर्व सेल्स हमारे पूरे जिस्म में अल्लाह ताला ने फैलाए हुए हैं। तो ये पैगाम रसानी का काम करते हैं। पैगाम एक जगह से दूसरी जगह कहाँ ले जाते हैं? दिमाग तक ले जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है रेड ब्लड सेल्स आते हैं। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने रेड ब्लड सेल्स रखी हैं। रेड ब्लड सेल्स का भी बहुत अहम काम है हमारे जिस्म में। तो वो कौन सा काम है? ये पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं। क्या मतलब ये हुआ कि आप सांस के ज़रिए ऑक्सीजन बाहर से, हवा से, खला से ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं सांस के ज़रिए। तो वो सीधी किधर जाती है? फेफड़ों में जाती है। किधर जाती है?
फेफड़ों में जाती है। किधर जाती है? फेफड़ों में जाती है। तो वहाँ से आगे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील कौन करता है? रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन की तरसील करते हैं, यानी कि पूरे जिस्म में कौन पहुंचाते हैं? यानी ये पैगाम रसां है, ऑक्सीजन रसां, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से उठानी है उसने ऑक्सीजन और पूरे जिस्म में उसने पहुंचा दी है। अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि ऑक्सीजन के बग़ैर हमारा पूरा जिस्म ज़िंदा नहीं रह सकता। यानी जितने भी अल्लाह ताला ने सेल्स हमारे अंदर रखे हैं, हर एक का अपना काम है, हर एक की अहमियत अपनी है। एक अगर सेल काम करना छोड़ गया तो हमारा जिस्म जो है उसमें तब्दीली आएगी, हमारा जिस्म मरना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ फंक्शन रुक जाते हैं। अब रेड ब्लड सेल, अगर फ़र्ज़ एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल कम होते हैं, ये काम करना छोड़ जाते हैं, तो क्या नुकसान होगा? पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। जब पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जिस्म का हिस्सा मरना शुरू हो जाता है। अगर पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई ना जाए तो फिर तो सारा जिस्म ने ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाना और इंसान की डेथ हो जाती है। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का बहुत अहम किरदार है। इसका भी हमारे जिस्म में बहुत तगड़ा किरदार है। ये हमारे जिस्म में एज ए बॉडी गार्ड काम करते हैं। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बॉडी गार्ड बिठाए हुए हैं। अब अल्लाह ताला को इस बात का इल्म था कि मेरी जो मखलूक है इसने 100% प्योर खुराक नहीं खानी, तो हम खाते भी नहीं हैं। अब हम जो खुराक खाते हैं वो 100% प्योर नहीं होती, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसका भी इंतज़ाम किया है हमारे जिस्म के अंदर। वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये अगर आप कोई खुराक खाते हैं, खुदा न खासा कोई जरासीम चले जाते हैं, आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, तो आगे बॉडी गार्ड बैठे हुए हैं, वो उनके साथ क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं और उनको क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ बीमारियों से पाक रहता है। लेकिन जिस दिन जो जरासीम हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल पर हावी होते हैं, उस वक़्त हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका ये फंक्शन था, वाइट ब्लड सेल्स ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाइट ब्लड सेल्स काम करना छोड़ जाते हैं तो फिर हमारे जिस्म से क्या होगा? तो हमारा जिस्म, अगर वाइट ब्लड सेल्स काम करना छोड़ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो जिस्म है ये बीमारियों का गढ़ बनेगा, जरासीम का गढ़ बनेगा। हर तरह के जरासीम हम पर हमला आवर होंगे और हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। जो आज के आखिरी अक़साम है उसका नाम है प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स, अब इसका भी अपनी जगह अपना किरदार अहम है। यानी मैंने आपको शुरू में बताया कि जितने भी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर सेल्स रखे हैं, बनाए हैं, उनका हर एक का किरदार अहम है। हर एक का किरदार अहम है, हर एक का अपना अपना काम है और हर सेल अहमियत रखता है। यानी अगर एक सेल ना हो तो दूसरे सेल गुजारा तो नहीं हो सकता। अगर एक सेल ख़त्म हो जाते हैं, यानी रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल नहीं है, तो फिर भी गुजारा नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो फिर भी गुजारा नहीं है। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो होते हैं ये खून को जमने नहीं देते, खून को जमने नहीं देते। हमारे जिस्म में जो खून मुसलसल 24 घंटे गर्दिश कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो इस वजह से कर रहा है, प्लेटलेट्स की वजह से ये खून को कहीं पर जमने नहीं देता। अब अगर ये प्लेटलेट्स अल्लाह ताला ना बनाता तो फिर क्या होता? यानी अगर प्लेटलेट्स खुदा न खास्ता काम करना छोड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारे जिस्म में जो खून है वो सारा का सारा जम जाएगा। जब खून सारा जम जाता है तो फिर क्या होता है? ज़िंदगी ख़त्म। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर सेल्स रखे हैं वो सारे के सारे अहमियत की हामिल हैं। किसी सेल, अगर कोई एक सेल काम करना छोड़ जाए
تو اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہمارے جسم پر پڑتا ہے. وہ ڈیتھ کی صورت میں ہو سکتا ہے, بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو ہمیشہ کی طرح اینڈ پہ میں ایک ہی گزارش پھر کروں گا کہ اگر آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور ہمیشہ اس کو دیکھتے رہنا ہے. اب مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے میرا لازمی پہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اس چینل میں نے ایک بنائی ہے, پلے لسٹ بنائی ہے. 6ٹھی کلاس کے جو لیکچرز ہوں گے اس کے لیے علیحدہ بنائی ہے. 7th کلاس کے جو لیکچر ہیں اس کی علیحدہ بنائی ہے. 8 کی علیحدہ بنائی ہے. یعنی آپ کو اکٹھے ترتیب کے ساتھ لیکچر ملیں گے. تو کل میں نے 7th کلاس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا پہلا لیکچر دیا تھا. آج میں نے ششم کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا جو پہلا لیکچر ہے وہ آج میں نے آپ کو دیا ہے. انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے, میرے ساتھ چلنا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک ایک چیز کا کنسیپٹ کلیئر کرواؤں گا یہیں پر بیٹھ کر. شکریہ. اللہ حافظ.